Okay, today we are going to discuss this topic, probability distribution. For MHT CET, generally two questions will be there from this topic. So this topic is around 4 marks for your MHT CET, right? Now, one thing I want to tell you that from this topic, don't do PYQ because now this year syllabus has changed. So if you are trying to solve questions from 2008, that time topic name was probability, but now it is probability distribution. So try to solve Marvel publication questions. For only this topic, don't solve PYQs. Okay. Now, before starting, you should know what is random experiment. If you throw a die, then you will, there are possibilities of getting 1, 2, 3, 4, or 5 or 6, right? So such kind of experiment is called as a random experiment. Sample space, set of all possible outcome, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event, any one element or set of element from the sample space is event. Then first, random variable. Now for this topic, what is random variable? The random variable is a function from sample space to set of real numbers. Sample space से set of real numbers पे जो function होता है, that is called as a random variable. Okay. When we'll discuss the question, that time we will solve. We'll see what is random variable. Now, what is discrete random variable? See, suppose that 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you throw a dice, then these are the elements in the sample space, right? Now, suppose that we have chosen event of getting odd number. If you select, so there will be 0 if you take any 3 numbers. So there may be 0 times odd number, or 1 time odd number, or 2 time odd number, or 3 time odd number. So this is X. This is random variable. Understood? So this is the relation or function from sample space to a real number. Now, discrete random variable. Suppose that in a society, if few people they are taking milk, so some people they are taking 1 liter, some people they are taking 2 liter, 3 liter, right? Or 3.5. Now this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. They are fixed. Means outcome are discrete. They are called a discrete random variable. So if you take X liter, it will be 1, 2, 3, 4, etc. But what is continuous random variable? Continuous random variable means suppose that height of a person, it may vary 5 feet, 5.10, 5.1121, likewise. So if it is continuous random variable, then you have to take integration, and for discrete random variable, formulas are different. That we will explain. Now, what is probability mass function? PMF क्या होता है? Probability mass function of discrete random variable होता है. Probability mass function discrete random variable में होता है. Means sum of all individual probability 1 अगर होगा, that is probability mass function. What is continuous random variable? Already I have explained you. Now, as in discrete random variable में sum of all probability 1 होता है, individual probability P1, P2, P3. Similarly, continuous random variable में if you want to integrate, then the formula will be minus infinity to plus infinity f of x into dx is equals to 1, or probability of x is equals to 1. And here in this is continuous random variable, and discrete random variable में क्या होगा आपका sum of I is equals to 1 to n xi
और सम ऑफ i is equals to 1 into 1 to n, pi is equals to 1. जहां पर कंटिन्यूअस आएगा इंटीग्रेट करो, जहां पर डिस्ट्रिक्ट आएगा वो फॉर्मूला यूज करो. नेक्स्ट, now what are the other formulas used in this chapter? So could you zoom in? Yes, yes. Okay, wait 1 minute, otherwise I will write here. This topic is from statistics because probability distribution. So here you have to find mean. Suppose that x दिया है आपको and p of x दिया है 0, 1, 2, 3, 4. Probability of getting 0 is suppose that 1 by 2 दिया है. Probability of getting 0.01 दिया है because here remaining I have to take half 0.5. Okay, so that sum of all probability will be 1. So what I'll do, I will take one correct example instead of 1 by 2. Okay, this is given. X is given 0, 1, 2, 3 and P of X is given 0.2, 0.3, 0.1 and 0.4. So sum of all probability is 1. It means it is probability mass function, right? Now, if it is given, then how to find mean? Mean कैसे find out किया जाता है? या mean के लिए formula कौन सा है? या फिर expected value? इसे expected value भी बोला जाता है. E of X is equals to sum of I is equals to 1 to n xi into pi. So xi तो दिया है आपको, pi भी दिया है. Just you have to multiply. So it will be 0.4. It will be 0.3. It will be 0.2. It will be 3 into 12, 1.2. So this is xi into pi. So it will be 0.4 plus 0.3 plus 0.2 plus 1.2. So whatever answer you are getting, 2.1. That will be your mean or E of X. Understood? Mean form find out करने के लिए formula sum of I is equals to 1 to n xi into pi. Now second, what is, that was first formula, it was not visible. Now second is variance. Variance क्या होता है? Sum of I is equals to 1 to n xi square. एक मिनट, I think it is not visible. Wait. Sir, हाँ. sir, the first x of I for the mean will be 0, sir, not 0.4. Where? Okay, हाँ. Here it is 0. Here it is 0. Okay. So 2, 2, 4, 5, 6, 7. 1.7. Yes, sir. Okay. Now, if you want to find variance or VAR of x, इसका फॉर्मूला है sum of I is equals to 1 to n xi square pi minus sum of I is equals to 1 to n xi pi whole square. ये फॉर्मूला है, right? So again what I have to do? Here I don't know what is mean by xi into pi. I have not calculated. So xi square मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा and then xi square pi. So what will be my xi square? 0 का square 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 and product 0 into 2 0.2, 1 into
0.3 0. Oh, sorry, 0 into 0.2 0 again, then 4 into 2, that will be, sorry, 4 into 0.1 xi into pi, no, ठीक है, 4 into 0.1 0.4 and 9 into 0.4 3.6, right? Correct. So 4 5 6 7 13 carry 1 4.3, right? Sir, for mean we will divide by 4. Why we will divide by 4? It is not that mean, actually literal meaning sum of all divided by 4. That meaning is different, but here xi and pi is given. So the mean is sum of I is equals to 1 to n xi into pi, not divided by 4. Okay, ठीक है. देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया है ना, so it will be 4.3. so my first xi square pi कितना आ गया मेरा 4.3 माइनस, ऑलरेडी ये तो मैंने निकाला था xi pi होल स्क्वायर. सो xi pi तो मैंने ऑलरेडी निकाला ही था, दैट वाज माय मीन 1.7. What? 2.89. 2.89. Yeah. And the answer 1.41. this will be your variance. Understood? Okay. Sir, in mean why we are not dividing by 4? Okay. देख बेटा, अगर ये प्रोबेबिलिटी दिया है, अंडरस्टूड, अगर ये हमें एग्जैक्ट x कितना है एग्जैक्ट दिया होता तो डिवाइडेड बाय 4 था. ये प्रोबेबिलिटी का मीन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन कर रहे हैं, तो सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi pi. अंडरस्टूड? ओके. नाउ नेक्स्ट, तो हमने मीन कैसा फाइंड आउट किया? सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi pi. वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर pi माइनस sum of I is equals to 1 to n xi pi whole square. This is nothing but mean का square 1.7 का square 2.89, and this already, this I have again calculated xi square into pi, that sum is 4.3. so 4.3 minus 2.89, that will be 1.41. understood? 1.19 in standard deviation. Okay, 1.19 in standard deviation by his writing. Let's see. 4.3 minus 2.89, right? No beta, 1 9 10 11 12 13, so 1 1.4 होना रहा है ना सर वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. अच्छा, standard deviation. Okay, you are telling standard deviation. So third formula that we have to solve standard deviation. So standard deviation के लिए third formula है SD of x is equals to root of variance is equals to root of 1.41. okay, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. Sir, please explain again what you want to know. OAPGC 5 student 20457. ओके, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे. फिर से एक बार बता रहा हूं, इस टॉपिक में मीन सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi pi. xi दिया है, pi दिया है, प्रोडक्ट कर दो, सम निकालो, मिल जाएगा मीन. वेरिएंस क्या होता है? सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर pi. xi स्क्वायर pi देखो, xi लिया था, xi का स्क्वायर मैंने निकाला यहाँ पर, फिर xi स्क्वायर इंटू पी आई, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिखा. सो वट एवर आई एम गेटिंग 4.3, ये मेरा फर्स्ट हो गया थिंग, माइनस सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi pi होल स्क्वायर. ये तो ऑलरेडी मीन ही है ना, तो मीन का स्क्वायर फॉर्मूला ही है. सो 4.3 माइनस 2.89, सो इट वाज 1.41. OAPGC स्टूडेंट समझ में आ गया? I hope you understood.
नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस तो आपने ऑलरेडी निकाला है, तो उसी को रूट में रख दो, वो मिल जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल अगर होगा, डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल मीन्स उसमें जनरली इंटीजर्स या सेपरेट सेपरेट अगर होंगे तो आपको सम ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n pi इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और कंटिन्यूअस होंगे जैसे कि 10 टू 20, 20 टू 30, इसके बीच में कोई भी होगा तो देन यू हैव टू इंटीग्रेट। So we'll see questions based upon this. If you want to take screenshot, you can take screenshot. Wait. Wait on 1 minute. Okay, let it. I'll send in your WhatsApp group. Sir, Yes. sir, can you explain DRV and CRV once again? Okay. Discrete random variable or continuous random variable. Okay. See. मुझे बता, हम डे टू डे लाइफ में है ना, जो हमारे इवेंट्स आते हैं या फिर सैंपल स्पेस आते हैं, वो तो एक फिक्स हो गया। अगर मैं डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने के बाद मेरे पास फिक्स डिजिट आएंगे आउटकम। क्या आएगा? एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 दीज आर योर आउटकम्स। Yes, sir. इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, उसमें इंटरवल है क्या? नहीं है इंटरवल। सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। जहां पर डिस्ट्रिक्ट रैंडम ऐसे इंडिविजुअल आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। बट अगर मैं ये लेता हूं, सपोज दैट हाइट ऑफ अ पर्सन और इंटरवल ले लिया 10 टू 20, 20 टू 30, राइट। Yes, sir. सपोज दैट फंक्शन दिया जाता है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो एक इंटरवल बन गया ना उसमें। Okay. तो 10 टू 20 की फ्रीक्वेंसी है सपोज दैट 7, तो ये हो गया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जहां पर जो अंदर की भी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि 10.001, 10.012, so this if all things in between that interval they are considering, then that is called as continuous random variable. तो continuous Yes. random variable अगर होगा तो ये okay. So basically, DRV में we have only integer and CRV we have both integer and points both. Yes, yes, yes. Okay. You can treat this as integers and this you can treat as Mixed. interval. Okay. Okay. ठीक. Thank you, sir. Okay. Next. So I think this was the first PPT. So only this much content is there for your probability distribution. We will see questions based upon this. If you want to take screenshot, you can take screenshot of this part. First page. And this second page. Oh, you will be sharing this, right? Yeah, I will share in WhatsApp group also. Yeah. Okay. Okay. Now probability distribution theory. Probability distribution MCQs. Wait 1 minute. Okay, I have to open my mail. Wait 1 minute. Was there, but it is not opening. 1 minute, I am opening my mail. Huh? Yes.
Nothing, sir. Nothing. Okay, Done, sir. done. Okay. I think recording was paused. So once again, I am explaining this sixth question. If the probability density function of continuous random variable x is given this, we have to find the value of k. It is given continuous random variable. So 0 to 1, k into x square minus 1 minus x cube is equals to 1. So k is the constant. If you will take outside, then x square into 1, x square minus 2 plus 3, 5 into dx is equals to 1. So k into x cube by 3 minus x6 by 6 is equals to 1. Lower limit 0, upper limit 1. So 1 by 3 minus 1 by 6 is equals to 1. So k into 3 upon 18 is equals to 1. So k into 1 by 6 is equals to 1. So k is equals to 6. So I think who is recording place to be okay. Next. Another person, if anyone is recording this. I think recording was paused. Now next. See the seventh question में क्या है देखो. The probability density function of continuous random variable x is given. Now you have to find value of k. Continuous random variable means आपको integrate करना है. Solve करो. So it will be कहाँ से कहाँ तक है 0 से 5 तक. Integration 0 to 5 k into sin pi x by 5 is equals to 1. K is constant. Sin pi x by 5 is equals to 1. Sin का derivative minus cos. So k into minus cos pi x by 5 into 1 upon pi x by 5 का derivative pi by 5 is equals to 1. Pi by 5 बाहर निकालो. So 5k by, so it will be pi into minus cos pi x by 5 is equals to 1. So you find out the value of k. रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था, अभी चालू कर दिया मैंने. चलेगा ना? Okay, answer C. Pi by 10. Pi by 10 is the answer. Simplify this. Next. Eighth question. Again, see, this is probability distribution of discrete random variable. It is very easy question. Now, what it indicates? Probability of x less than 0. Less than 0 में क्या है? Event में. तो ये है आपके. Less than 0 means 2k plus k. That is 3k. It is already given probability mass function. So, probability mass function already है. It means 2k plus k plus 3k plus 5k plus k is equals to 1.
So 2 plus 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13k is equals to 1. So k का वैल्यू आ गया 1 by 13. Now probability x less than 0. Less than 0 means probability of x is equals to -3 plus probability of x is equals to -1. बाकी तो है. So -3 के लिए क्या है 2k plus k. So it will be टोटल 3k. 12 के हो रहा है हाँ? सो टोटल 12 के है 1/12 होगा सर 1/12 होगा Okay. आंसर Okay. k equals to 1/12 होगा ओके एडिशन 12 है तो 1/12. चलो k का वैल्यू 1/12 है तो 3 into 1/12 so it will be 1/4. so p of probability less than 0 1/4 है तो पहला 1/4 है तो ऑप्शन ए ही है. दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में स्टार्टिंग 1/4 यही दिया है. ओके नेक्स्ट कैन यू सॉल्व दिस नाइन्थ में देखो क्या दिया है. If the probability mass function of discrete random variable x is given, right? Again, it is discrete random variable. Discrete दिया है and probability less than or equals to 2 means 2 included है. 2 included है means probability of x is equals to 0. Oh, sorry, less है ना, कम है, right? So probability of x is equals to 0 plus 1 plus 2 और 1 minus probability of x is equals to 3 भी करोगे तो भी चलेगा. Sir, हाँ बोलो. so can you enlarge your screen थोड़ा सा? ओके Okay, sir. Thank you, sir. हाँ ninth answer student they are writing A. Correct 1/2. देखो you can solve this by any method. मुझे पता है kx है डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल दिया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मींस सम ऑफ 1 2 3 मींस k कितना आ रहा है आपको देखो 0k plus 1k plus 2k plus 3k 1 है मींस 6k is equals to 1 so k is equals to 1/6. k का वैल्यू 1/6 आ गया. टेबल भी बना सकते हो. दिस इज नथिंग बट ये टेबल जो है होता है ना ऐसा टेबल भी है x और p of x 0 1 2 and 3. 0 के लिए क्या है 0k 1 के लिए 1k 2 के लिए 2k 3 के लिए 3k लाइकवाइज क्वेश्चन है तो k का वैल्यू 1/6 आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 मींस लेस देन और इक्वल्स टू 2 है मींस 0k plus 1k plus 2k that is 3k. 3 into 1/6 that is 1/2. So A answer is correct. Sir, हाँ बोलो. what was the second method of solving this from ninth one? You were saying one more method is there. One more method you are asking. Yes, sir. Okay. So अगर मैं 1 minus probability of x is equals to 3 लेता हूँ तो 1 minus 3k. So 1 minus 3 into 1/6 that is 1 minus 1/2 that is again 1/2. Okay. Probability of x less than 2 means 3 1 minus क्योंकि less than 2 और 3 का 1 है तो 1 minus probability x is equals to 3. Okay. Because the sum of the probabilities is 1, right, sir? Yes, right. Thank you, sir. 48 question. Okay. सर इसमें 48 क्वेश्चंस है सो सब करेंगे. चलो 48 है तो 48 भी करेंगे. चलो जितना हो सकता है ट्राई करेंगे.
एक मिनट, recorded file saved to this. अभी तक हमारा कौन सा हो गया, ये भी हो गया राइट। 10th सॉल्व करना है। 10th के लिए मैं इधर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड इवन है, ये तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर का है 0.1 और 0.5, सो 0.1 प्लस 0.5 दैट इज 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का है 0.4, 0.2 प्लस 0.2, सो ऑप्शन रहेगा 0.4 और 0.6 और 0.4 जो कि यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी था वो, आई थिंक आपको समझ में आ गया। टेबल दिया है इवन और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, इवन की है सॉरी ऑड और इवन की, पहला ऑड दिया था तो 0.6 और 0.4। सी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कंटिन्यू क्वेश्चन दिया है, सो द आंसर वाज सी। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो। Now what is given? The probability density function of a continuous random variable. Continuous दिया means आपको इंटीग्रेट करना है। Is 1/2. 1/2 कब है? 0 से लेके 2 तक ये इंटरवल के लिए, और बाकी सब इंटरवल के लिए 0 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, सो 1.5 से कम है मीन्स स्टार्टिंग है 0 से 1.5 राइट। फंक्शन है आपका 1/2 इज इक्वल्स टू 1 है राइट। सो पहले x लेस देन 1.5 और x ग्रेटर देन 1 है। फर्स्ट मैच करके देखते हैं आंसर अगर आ गया तो, क्योंकि बिकॉज ए ऑप्शन तो सब में फर्स्ट इनिशियल थिंग तो सब में डिफरेंट है, तो एक भी निकालो तो भी चलेगा। सो इसका इंटीग्रेशन निकालो 1/2 x इज इक्वल्स टू 1, सो ओके 1/2 ही दिया है, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दो 0 और 1.5, so if you will put 1.5/2, okay, so 0.75 ये ऑप्शन आएगा। अंडरस्टूड। देखो x लेस देन 1.5 ना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना है कहां से, 0 से लेके 1.5। 1/2 ही दिया है, वेरिएबल तो नहीं दिया है। 1/2 इसका इंटीग्रेशन ले लिया 1/2 x 0 से 1.5 तो, सो 1/2 तो बाहर निकाल के वो भी करोगे आप, 1/2 इंटू 1.5 माइनस 0, सो इट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.75, जो कि फर्स्ट ऑप्शन 0.75 बी का है। नाउ हमने इक्वेट टू 1 नहीं किया सर, इट विल बी इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1.5/2 हो जाएगा। नहीं, हमें इसका ही एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि 0 से 2 तक 1 है। हाँ 0 से 2 तक 1 है, बट हमें 0 से 1.5 तक वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो इट इज लेस देन 1। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट 12th वाला भी ऐसा ही है, 12th वाला सॉल्व करो। 12th और 13 सेम है।
ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, 12 सी, 12 का आंसर सी। वन बॉय इज राइटिंग 12 आंसर सी, करेक्ट, बराबर। 13 13 का ए 1/16 बराबर है। सी, यहां पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया है, राइट। फंक्शन यहां पर दिया है 1/4, कब है, -1 से लेके 3 तक, अदरवाइज 0। सो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। लेस देन 0 मींस -1 से x लेके greater than 0 0 ना? सॉरी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 दिया है, तो 0 से लेके 3 तक। ओके Sir, हाँ बोलो। if they have told greater than 0, so should we include 0 and 3? They have not told equal to. फॉर इंटीग्रेट यू हैव टू टेक 0, दैट लोअर लिमिट 0 ले लो, इंक्लूड करना है, उसमें इंक्लूड करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो 1/4 तो बाहर आएगा, x 0 to 3, राइट। सो 1/4 3 - 0, सो 3/4। आंसर कितना आ रहा है, 1/4 ही दिया है ना, ठीक है। 0.75. सी, So, हाँ बोलो। sir, for the second question, that is question number 13, you हाँ have asked that we have to find probability of x is greater than equal to 2 also. हाँ, तो So for वही that, इंक्लूड करना है, 2 so से for लेके that 4 we have तक, to include it, no? या यू हैव टू इंक्लूड Okay, sir. करना। Thank you. सो 13 का क्या आएगा आंसर, A. ओके देखो, for this 13th question I have to find x less than 1, means 0 से 1 तक। x/8 दिया है, 1/8 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, राइट। लिमिट क्या है आपका, 0 से 1, so it will be 1/8, 1/2 - 0, so 1/2, so it will be 1/16। तो पहला 1/16 एक ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये 14 में क्या दिया देखो,
Is it visible? Now look, this is continuous random variable means integration दिया है, right? X has probability density function. देखो 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3 and otherwise. So then what will be A? Right? So in short 0 से 3 है ना, बट इंडिविजुअल आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि इंडिविजुअल वेरी हो रहा है, राइट? सो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 से 1 ax, राइट, प्लस 1 to 2 a प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 3a minus ax. इन सब का एडिशन 1 दिया है, राइट? सो फाइंड आउट द आंसर. सर हाँ बोलो. सर कंटिन्यूटी से भी ये सम सॉल्व हो सकता है ना? हम्म? कंटिन्यूटी से भी सॉल्व कर सकते हैं हाँ कर सकते हो, कंटिन्यूटी से भी कर सकते हो. थैंक यू सर. देखो इसका आंसर क्या आएगा, ए तो बाहर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस ए बाहर, वेट 1 मिनट, एक्स 1 to 2 प्लस नाउ 3a का इंटीग्रेशन 3ax माइनस ax का आएगा ax स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है 2 to 3 इज इक्वल्स टू 1. सो इट विल बी, यहाँ लास्ट में से भी आप a अगर कॉमन निकालोगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. सो इफ विल टेक a as a common, then x square by 2 plus x, right? But limit find out कर चलो. a into 1 by 2 plus a into 2 minus 1 अपर लिमिट प्लस a बाहर निकाल के अगर आप सॉल्व करते हो so 3x minus x square by 2 to 3. So find out the answer is equals to 1. So what will be the value of a? a की वैल्यू क्या आएगी, लिख half, लो. 1/2. 1 by 2, C ऑप्शन. अच्छा कोई स्टूडेंट है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था, अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो बीच में एक पार्ट मिस हो गया था जब भी स्टार्टिंग हुआ था ना एमसीक्यू लेना. सो आई थिंक फर्स्ट 5 एमसीक्यू recording was not done. If you have recorded, raise your hand so that I can collect from you and it will be club. सर कितने बजे क्लास शुरू हुई? सेम 2 बजे ही हो गया था. सर आप कल्याण ग्रुप के कोऑर्डिनेटर को प्लीज लिंक जल्दी भेजने को बोलो, 2 बजे लिंक. ओके ओके सर, वी जस्ट गॉट. ओ यार, कल्याण ब्रांच, कल्याण के कोऑर्डिनेटर कौन है अभी? कल्याण को अभी मिला सर, थाने में भी नहीं मिला सर, प्लीज ऐड मी. वेट मैं फोन करता हूँ.
Wait, I'm calling. Okay, Kalyan student, he is telling. Okay, हाँ सर, हाँ सर, अभी स्टूडेंट कल्याण और थाने के बोल रहे कि उनको रिकॉर्डिंग अभी मिला है, सो मैसेज कर रहे कि उनको जो कोऑर्डिनेटर है ना थाने और कल्याण के, उनको बोलो कि जल्दी लिंक भेजे, क्योंकि आप उनको बोलो कि वाई यू सेंड लेट लिंक बिकॉज स्टूडेंट हियर राइटिंग. ओके, या and okay, yeah, I inform. So last 5 minutes, when this lecture will get over, I will explain once again the remaining part. Okay, to Kalyan and Thane, when I will finish this part, I will explain once again. We just okay. Next, so the Thane and Kalyan student, for you, for Thane group link was sent. Okay, sir, for Thane group link was sent yesterday. Yeah, okay. Next, we were on this question 14, it was over. Now the question number 15. देखो 15th में क्या दिया है. Now probability distribution of discrete random variable x is given. This is discrete random variable. Now we have to find x greater than or equals to 2. So this is very easy question. Greater than 2 के लिए क्या देखो, sum of all probability mass function है, probability mass function is given, therefore k plus 2k plus 4k सर plus इक्वल टू भी हो जाएगा. 2k plus k is equals to 1. Okay, so the Thane student और Kalyan student, those who have joined late, इस चैप्टर में हमें बहुत इजी है, दो ही चीजें हैं. एक तो आपका इंटरवल जो है x, ये डिस्ट्रिक्ट होगा, मींस 0 1 2 3 4 5, इसे डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल बोला जाता है. उसमें सब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो सभी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है. सो k plus 2k plus 4k plus 2k plus k is equals to 1. So it will be 3 7 8 9 10k. 10k is equals to 1. So k का वैल्यू आ जाएगा 1/10. अब k की वैल्यू 1/10 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मींस 2 भी इंक्लूड होगा. 7/10. हाँ, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो जाएगा 7k, राइट. सो इट विल बी 7/10. सो पहला आएगा 7/10 a का वैल्यू, एंड b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3. 7/10. ओके, ग्रेटर देन 3 मींस नहीं, ग्रेटर देन लेस देन 3. ओके, 4 5 6 4 5 6 7 8 9/10 आ जाएगा ना. Sir, 7/10 ना? It's Sir, So less 7 than by less equal than to 3 ना नहीं है. sir? सर 7/10 लेस देन 3 मतलब ओके ओके ओके, लेस देन तो एक्सक्लूडिंग है, ठीक है. तो ऑप्शन आपका सी आएगा, राइट. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. I thought is equals to, but here it is less than 3. Less than 3 means यही आएगा, ठीक. Next, understood. Less than 3 means 1k 2 3k 3 plus 4 7k, again it is 7k. So a का भी वैल्यू आएगा 7/10, b का भी वैल्यू आएगा 7/10. so option C was correct. Next, 15th. Now 16th. देखो 16th क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए बता देता हूं फिर से. ये डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है. डिस्ट्रिक्ट मींस इंडिविजुअल दिया है तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है.
अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो ही इंटीग्रेट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। वेट 1 मिनट, व्हाई दिस पेन इज नॉट selected? Okay, I think सर वो something सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट हुआ है। ओके नाउ ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम 16th वाले क्वेश्चन पे थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है। सो इस सब का सम कितना है? 1 है, स्क्वायर में नहीं है, इंडिविजुअल है। सो 4 9 सर 49 के 16 49 k, 49 k is equals to 1, so k is equals to 1 by 49. Now we have to find x greater than equals to 2. So 45 by 49 45 है हाँ। 49 सर बी ऑप्शन आंसर है। बी ऑप्शन बी बी B option है। b, ओके, क्योंकि बाकी का 45 आएगा। ओके, सो 45 k आ जाएगा, that is p greater than equals to 2, so it will be 45 into 1 by 49, it will be 45 by 49. ओके, नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हो गए उनके लिए सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है तो सबका प्रोबेबिलिटी 1 है, k का वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, थैंक यू। अरे हाँ, यस, सर One k minute. is equals to 1 by विनोद जी। 49 के आगे मुझे नहीं समझा, क्या कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, कहां से आगे नहीं समझ में आ गया बेटा? k is equals to 1 by 49। हाँ, k का वैल्यू 1 by 49 है। अभी देख, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मींस 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा मींस ये स्किप हो जाएगा, तो 2 से बड़े तो यही है ना। सो 5k प्लस 7k प्लस k प्लस 9k प्लस 11k प्लस 13k, ये सब k की वैल्यू होती है 45k। सो p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो 45k, k की वैल्यू हमें पता है 1 by 49, सो 45 by 49। समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, और सेकेंड वाला भी बताता हूँ बिकॉज आई थिंक यू हैव जॉइंड लेट, सो दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। जो कि यहाँ पर दिया नहीं, फिर भी अगर 0 और 4 के बीच में है ना, इंक्लूड नहीं हो, एक्सक्लूड है, सो 1 2 और 3 का आएगा, 1 2 और 3 का, सो 7 8 9 10 15 के आ जाएगा, 15k, सो 15 इंटू k का वैल्यू 1 by 49, सो 15 by 49। इसका भी इंटरवल का मैंने बताया, अगर ये 4 इंक्लूड होता तो ये और 9 के ऐड होता। अंडरस्टूड? अभी ये जो है नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हो गए हैं, फिर से ये डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल ही है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का नेक्स्ट है जो कि मैं बताऊंगा। सो 17th और 18th वाला क्वेश्चन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल का, और 18th वाला जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। सो जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हो गए उनके लिए फिर से एक बार देखो, यहाँ पर टेबल नहीं दिया है, ये जो है इंडिविजुअल आउटकम है 1 2 3 4 5। सो दिस इज नथिंग बट एक टेबल ही है जहां पर ये 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, राइट। और इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी है x by 15, ये x है एंड दिस इज p ऑफ x। सो दिस इज x by 15 मींस x की वैल्यू 1 है, तो 1 by 15 पहले का है, सेकेंड का है 2 by 15, थर्ड का है 3 by 15, फोर्थ का है 4 by 15, फिफ्थ का है 5 by 15। तो इसके लिए, और 5 से जो ग्रेटर है 6 7 8 सभी के लिए 0 है, मींस इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी x है ना, सो x बाय, ओके इंडिविजुअल तो दे दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a सच दैट हाफ, अच्छा a by 2 दिया है, ओके, a सच दैट हाफ और 5 by 2 के बीच का है। तो इंटीजर
0.5, सो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 1, 2, 3, 4. 1 और 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। अच्छा 1 2 आएगा, 1 और 2 ही आएगा, 1 or 2. सो 1 और 2 आएगा, और यहाँ पर 2 X 3 4 than. 5. 2, 3, 4, Yeah. 5. या सो 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए क्या है? 1/15 प्लस 2/15, 1/5. 1/15 प्लस 2/15, सो 1/5. 1/5. 1/5, सो 1/5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1/5। बी का देखो, B 14/15. हम्म, B 14/15. 14/15, 15. so probability of A upon B, ये कह दिया है, so A upon B, so 1/5 divided by 14/15 अगर लोगे आप तो 1/5 into 15/14, तो ये तो नहीं आ रहा है, 3/14 तो आंसर भी नहीं है। Sir, it will be probability of A union B upon. हाँ, There's a क्योंकि mistake ये- in the question. Yeah, it was not mentioned. Probability. Wait. Question number Sir, 17. probability of A intersection B will be 2/15, right? Because that is the Yeah, omitting common in both intersection of them. is given. Right. Actually, this is not related with. So 1, 2, and 2, 3, 4, 5. Sir, is the answer D? Yeah, probability of A intersection B upon probability of B. Answer is B Probability of then. A intersection B upon probability of B. Its meaning is probability of A intersection B upon probability of B. So probability of A intersection B कैसे find out करेगा? देखो. Sir, 2/15. Yes. Probability of A intersection B. इसमें क्या है? 1 greater than है ना? Greater than 1 means 2 ही आएगा बस. अच्छा 2, 3, 4, 5. So probability of 1, 2 union probability of Sir, intersection, na? 4, 5. The intersection, not union. Okay, intersection, sorry. Intersection में तो 2 ही आएगा. 2 So 2. probability of 2 by probability of B. Sir, option D is So the probability of X is D, equals D. to 2 upon probability of X greater than 2. 1/7. X B है greater than 1. Greater than 1 आएगा, greater than 2 आएगा. Greater than 1 means 2, 3, 4, 5. So probability of X is equals to 2 upon probability of 2, 3, 4, 5. 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of कहाँ तक है ये? 5. So find out. 1/7. Yes, 2/14 1/7. means 1/7. So probability of X is equals to 2. तो आपको पता था X is equals to 2 के लिए 2/15 था, और इसे आप 1 minus probability of 2, 3, 4, 5 ऐड करने से बेटर है 1 minus probability of X is equals to 1 कर दो. So 1 minus 1/15. So it will be 2/15 upon 15 minus 1, 14/15. So it will be 2/14, that is 1/7. 1/7 is correct option. Okay. So discrete random variable पता चल गया. इसका ये फार्मूला है, ये ध्यान में रखो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हाँ. Now next. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मींस इंटीग्रेट करना है हमें. इंटरवल दिया है 0 से 1 तक ये फंक्शन, अदरवाइज 0. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a, एक कोई तो इंटरवल दिया है मींस 0 से a. ओके, लेस देन a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a is equals to probability of a, ये greater than.
अच्छा दोनों इक्वल है. Okay, then what will be a? Right? So 0 से a तक 6x into 1 minus x into dx is equals to a to 1 तक 6x 1 minus x dx. So इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि a में वेरी करेगा. So you have to find value of a. Okay. हाँ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो भी स्टूडेंट लेट आए उनके लिए बताता हूं, जो भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया है तो वहां पर इंटीग्रेट होगा. ओके ठीक. सो यहाँ पर बताऊं, और एक बार बताऊं ये थोड़ा एक्सप्लेन करके. यस सर. ओके ठीक है. देखो हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया था. नाउ इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a मींस a 0 और 1 के बीच में एक a बैठा है. सो 0 से लेके a तक फंक्शन क्या है? 6x 1 minus x इज इक्वल्स टू a से ग्रेटर है. a से ग्रेटर कितना है? मैक्सिमम यहां पर दिया है 1. 6x 1 minus x. अभी इसका इंटीग्रेशन ले लो और इंटीग्रेट करके x की वैल्यू, अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट है 0. इसमें अपर लिमिट है a, सॉरी अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0. सो इसमें एक आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. ये इक्वेशन a में वेरी करेगा, राइट? क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पर a है, इधर लोअर लिमिट a है. क्या वो सॉल्व करके दिखा सकते हो हाँ हाँ सर? वो लिमिट सॉल्व करके दिखा सकते हो? यस यस. 6x 1 minus x. Wait on 1 minute. चलो इसे मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूं. देखो 6 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है. x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. लिमिट क्या है? 0 से a इज इक्वल्स टू, यहां पर भी 6 बाहर आएगा, a टू 1 फिर से x माइनस एक्स स्क्वायर dx. चलेगा? ओके. 6 इधर ही कैंसिल आउट कर दो. सो मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से a तक इज इक्वल टू, इसका लिमिट आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 a टू 1 तक. ओके अभी अपर लिमिट a सब्स्टिट्यूट कर दो. सो a स्क्वायर बाई 2 माइनस a क्यूब बाई 3, माइनस रखोगे तो 0 ही आने वाला है, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर a रख देते हैं, सॉरी अपर लिमिट तो 1 है, सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3. ओके इसे कलर चेंज कर देता हूं मैं, माइनस अभी अपर लोअर लिमिट a रख दो. सो a स्क्वायर बाई 2 माइनस a क्यूब बाई 3. ओके तो इसमें से आपको सॉल्व करोगे आप, सो इट विल बी 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बाई 6 है ना. और यहाँ पर 3 माइनस 2 1 बाई 6 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपॉन 6. ओके सो 6 कॉमन लेके 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब
ना 2a क्यूब अपॉन 6 था, तो दोनों तरफ का 6 कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब. सो पुट द वैल्यू, जो भी इक्वेशन आएगा उसमें रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल आ रहा है 1/2. आंसर फाइंड आउट करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन में कर दो, आंसर आएगा. ओके so your answer will be B, half आएगा 1/2. Understood? If you understood, write in a chat box. Okay, yes. Next, can you solve this one? Continuous random variable दिया है, has probability mass density function this दिया है, so हमें probability of x less than equals to a is equals to probability of x a probability greater than a less than or equals to a or greater than a, दोनों सेम दिया, मीन सेम ही है क्वेश्चन. सॉल्व करो. 19th वाला आप सॉल्व करो. कैन यू फिक्स continuous random CRV equation of the fixed random variable and find its inflection point? Can we find the continuous random variable equation of the fixed random variable? I am reading your chat. Okay, inflection point. 19th question. Can you solve 19th question? Okay. Sir, can you show the options of 19th option or 19th Okay, question? you want options. Okay. ठीक है. So I think this is over. So shall I erase this? Because to show the answers, I have to clear this. Now see. So solve 19th and 20th.
हाँ, look here. Next. Can I explain this 20th or 19th you want? 19th you can solve easily. I'll explain question number 20. देखो, my voice is audible? Is it Yes, audible? sir. हाँ. Now देखो, the life in hours of a radio tube is continuous random variable. Okay. With probability density function, ये function दिया है. Then the probability that a tube will last less than 200 hours, if it is known that the tube is still functioning after 150, means सभी के सभी tube 150 hours तो at least चलते ही है. Means जितने भी tube है 150 तो है ही. Means नीचे आएगा probability. सब ट्यूब 150 आवर्स तो चलते ही है ना. और ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी. देखो 200 तक मीन्स 150 तो चलते ही है. 200, सो 150 से 200 ये ऊपर आएगा. सो फाइंड आउट. और फंक्शन दिया है कंटिन्यूस दिया है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ये 150 से 200 100 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 से 150 तो चलता ही है ये, और है 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ग्रेटर देन है ना, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 150. सो ये 150 से इंफिनिटी आएगा. Sir, recording is stopped. Slow. Okay, now is it? Now look here. I hope you understood this part. देखो हमें बोला है कि वो ट्यूब तो 150 आवर्स तो सर्विस देती ही है. मींस सभी के सभी 150 आवर्स मिनिमम देते हैं. तो आपको है ना प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, है ना. तो सभी सैंपल्स स्पेस में जितने भी एलिमेंट है मींस सभी के सभी 150 से ज्यादा चलती ही है. मींस नीचे आएगा 150 से इंफिनिटी, है ना. तो फंक्शन तो आपको पता है 100 अपॉन एक्स स्क्वायर. और ऊपर क्या आ जाएगा इवेंट में, क्या है आपका 150 से 200. सो 150 टू 200 और 100 upon x square into dx. So whatever you are getting this answer, so you find out 100 you have to take outside, है ना. So x raised to minus 2 into dx. Here also 100 outside, so x raised to minus 3 into dx, but limit is different, 150 to 100. Here 200 to infinity. 100 will get cancelled. So what is the answer? Answer A 1/4. But here answer is B 1/2. Sir, बोलो. you explain the second part of the question once again? Then the probability that the tube will from there. सेकेंड पार्ट ना. हाँ देखो, हमारे पास ट्यूब है, सभी के सभी ट्यूब की कंपनी ने गारंटी दिया है 150 आवर्स तो चलती ही है, है ना. तो हमारे पास सपोज दैट 10 ट्यूबलाइट है ना. 10 ट्यूबलाइट है तो 10 में से 10 सभी के सभी 150 आवर्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आएगा आपको 10 मींस 150 टू इंफिनिटी, राइट. अभी ऊपर क्या है, अभी 10 ट्यूब है, 10 में से 150
से ज्यादा है तो कुछ 160 चलेगी, कुछ 170 चलेगी, कुछ 200 चलेगी, कुछ 250 चलेगी, कुछ 300 भी चलेगी, राइट? तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी देखना है जो कि 150 से 200 मींस 200 तक चले एटलीस्ट। सो 150 से 200 तक कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा। अंडरस्टूड? But the company has told that it will only work for 150 hours. So it should be 0 to मिनिमम 150. मिनिमम 150 आवर्स, Okay. मिनिमम 150 आवर्स तो सभी ट्यूब वर्क करते हैं। तो सैंपल स्पेस में ये हो गए। It should be 0 to 150, no? हाँ 0 to 150 क्योंकि मिनिमम 150 है तो 0 to 150 लेना चाहिए ना हम लोग को। नहीं नहीं 150 मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितना भी चलेगी अच्छा, कंपनी। ओके ओके हाँ Okay. ओके गॉट इट। Okay. थैंक यू सर। Okay. So basically 10 tube lights are there in the sample space. From that you to find how much will work till 200 hours, right sir? Yes till 200, right? Thank you sir. Next, अभी यहाँ पर क्वेश्चन चालू होते आपके E of x। देखो 22 तक आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चंस थे, राइट? And after 23, once again I'll explain the formula. Those who have joined late, wait 1 minute. ओके ठीक है। देखो जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हो गए उनके लिए मैं फिर से एक बार बताता हूं इस चैप्टर में क्या क्या फाइंड है। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, if it is discrete random variable, then sum of all probability is equals to 1 है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो भी है पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो हमने सीखा है। बाद में है मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसी को ई ऑफ एक्स बोला जाता है। उसका फॉर्मूला है सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी आई। वेरियंस वी ए आर ऑफ एक्स होता है सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई ब्रैकेट का स्क्वायर। एक्चुअली ब्रैकेट का स्क्वायर हाँ बताया था मैंने उधर भी। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस। ओके सो अभी 23 के बाद देखो हमें फाइंड आउट करना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स के लिए देखो एक्स तो हमें पता है, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल आप वर्टिकल टेबल ड्रॉ करोगे तो बेटर रहेगा। एक्स क्या है आपका, एक तो 1 है 2 या फिर 3। अंडरस्टूड? तो इफ इट इज 1 then c upon x cube, right? Otherwise 0। तो यहां पर p of x लिखो। so xi मिल गया, pi मिल गया, so xi into pi भी मिल जाएगा आपको। xi दिया तो xi स्क्वायर एंड देन xi स्क्वायर pi। बट यहां पर ओनली आपको e of x पूछा था, मींस सम ऑफ xi into pi इतना ही पूछा था। सो बाकी 4 की जरूरत नहीं थी। सॉल्व दिस। ट्वेंटी थर्ड आएगा आपको या मैं बताऊं पूरा? देखो
1 2 3 इंडिविजुअल इसकी प्रोबेबिलिटी c by 1 cube that is 1, c by 2 cube that is 8, c by 3 cube 27, right? अभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मींस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट? सो बट उसकी जरूरत नहीं, e ऑफ x ही पूछा था हमें, राइट? सो इट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सो c by 1 plus c by 8 plus c by 27 is equals to 1. इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो c की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या, xi into pi फाइंड आउट करो. So whatever answer you are getting, xi into pi, so it will be c by 1, 2c by 4, that is c by 2 हो जाएगा फिर से, 3c by 27. From here you will get the value of c, put here, you will get the answer. So what is the correct answer? You write in chat box. अच्छा 22 एक्सप्लेन करो, ओके ठीक है. देखो कंडीशनल अगर a अपॉन b है तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than or equals to 5 intersection with probability of x greater than 3 upon probability of x greater than 3. So probability of a b ये होता है probability of a intersection probability of b upon probability of b, ये फॉर्मूला ही है. Okay, understood? I think one boy he was asking that question. Oh, CMF. Sir, can you please explain cumulative mass function? CMF क्या होता है? इधर दिया है, कोई एग्जांपल में देखा है? क्यूमुलेटिव मास फंक्शन होता है मींस सबका एडिशन 1 होता है. सर 22 फिर से वापस एक्सप्लेन करो. देख प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो प्रोबेबिलिटी a क्या दिया है आपको, लेस देन इक्वल्स टू 5 इंटरसेक्शन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 क्या है, 5 से छोटा और 5 भी इंक्लूड है, तो इन सब का एडिशन कर दो. ओके या फिर डायरेक्ट करो ना, देखो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 क्या आएगा आपका, 4 आएगा. मींस सिर्फ ये इतना ही आएगा, 0.62 आएगा ऊपर, 0.62 अपॉन 3 से ग्रेटर सर होगा. 4 और बोलो. 5 दोनों का आएगा ना सर, क्योंकि 5 इंक्लूडेड था ना पहले में. हाँ 5 इसमें तो इंक्लूडेड था, intersection 4 या 4 और 5 आएगा. सो 4 और 5 का एडिशन 0.62 प्लस 0.85. ओके नाउ इट इज क्लियर. 0.62 प्लस अगर आपको चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. सो 4 और 5 का 0.62 प्लस 0.85 अपॉन ग्रेटर देन 3 कितना है, ये 0.62 प्लस 0.85 प्लस 1. Understood?
So lecture over. Sir, you're on mute. Yes. Try to solve 24th. Yes. Solve this 24th question. Sir, Yes. so what's the answer of the 22nd one? 22nd. Yes, sir. ओके देख बेटा, हमें एक चीज है, यू नीड फाइनल आंसर और एक्सप्लेनेशन. Sir, the final answer. फाइनल आंसर 22nd. Yes, sir. सॉल्व किया किसने लास्ट तक? 0.71. 0.71. इसका एडिशन कर दो, इसका एडिशन करके सिंप्लीफाई करो. So 0.7 is 71 was the correct answer. Now next. (24th). In this 24th, you have to find variance, है ना? फिर से x दिया है, p of x आप फाइंड आउट कर पाओगे. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, मींस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसे 1 से इक्वेट करोगे, k की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 4, है ना? सो 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो k आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 है, 4k, 9k, 16k, तो 5 14 30k, राइट? 30k इज इक्वल्स टू 1, सो k का वैल्यू आ जाएगा 1/30. k का वैल्यू 1/30 आएगा, राइट? सो वेरिएंस हमें निकालना है. सो वेरिएंस के लिए xi pi भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. k इज इक्वल्स टू 1/30 आ गया था, राइट? xi pi अगर आप फाइंड आउट कर दो, k 8k 27k
64k. Now xi square and xi square pi. And variance का फॉर्मूला आपको पता है, sum of I is equals to 1 to n xi pi xi square pi minus sum of I is equals to 1 to n xi pi whole square. Okay, so if you use this formula, then we will get the answer. k का तो वैल्यू 1/30 आ गया था. Okay, ठीक है. So we will end meeting here. Sir, I had doubt, Yes. sir. So Bolo. how will solve these questions in 1 minute? Like we have only 1 minute, no, for each sum. For mathematics, you will get 2 minutes. Okay, okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Sir, will you send this PDF in the group? No? Yeah, I will send PDF in your. Okay, sir. So can you send just after this lecture? Yes. Okay. Just after this lecture, I will send. Okay, thank you, sir. Okay. Yes. Yes, beta. So thank you, sir. I have the scored 80 in maths mock test yesterday. Oh, good. Can you please guide me how to improve? Okay. Thank you for. और कल्याण के स्टूडेंट को कुछ डाउट था? कल्याण के स्टूडेंट आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताना था? So, हाँ, बोलो. what is CMF? EMF. CMF. Cumulative mass function. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी होता है, क्यूमुलेटिव मास फंक्शन भी होता है. मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है आपको? लेस देन 1 ग्रेटर देन 3 है ना. क्यूमुलेटिव मींस अप टू वहां तक. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव अप टू 5 अगर होगा तो 0 1 2 3 और 5 का एडिशन हो जाएगा. Can you show difference between PMF and CMF? ओके. सही बेटा. हाँ. ये x दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया है. हाँ. 0 1 2 3 दिया है. हाँ. इसका दिया है प्रोबेबिलिटी सपोज दैट k, हाँ. 2k, 5k, हाँ. 7k. हाँ. तो मुझे बताइए 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाँ. 15k हो जाएगा. हाँ. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मींस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है. हाँ. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है मींस 15k इज इक्वल टू 1. सो k का वैल्यू आ जाएगा 1/15. अंडरस्टूड. अभी CMF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो यहाँ पर अगर लेस देन 2 दिया है, सो अप टू दिस क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटिव अगर मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ पर k आ जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा k और 2k 3k, 5 + 3 7k. अंडरस्टूड. ये हो जाएगा अप टू दिस मींस अप टू दिस. यहाँ पर ये फंक्शन है x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो आपकी 7k आ जाएगी. Okay, so basically that 7k will be equal to 1. हाँ. Okay. So question में CMF will come or? No. PMF it will come. Okay. Any doubt? No sir, thank you sir. Okay. 20 11 19 कुछ डाउट है? Sir, can we leave? Yeah, you can leave. Thank you, sir. Bye. Bye sir, thank you sir. Bye. Okay. So in next lecture we will take probabilities or binomial distribution. So, okay. Yes. I couldn't find a paper yesterday. So, Okay. where should I ask for it? So you It's ask not your the branch previous coordinator. papers, but not the one dated yesterday. Okay, test paper you are asking, writing test. Yeah, The test paper came 15 minutes before 9 o'clock. So at 8:40. Okay. तो प्रत्युष मेरे बैच का स्टूडेंट, मैं आवाज से पहचान गया तुझे.
right? Yes, Yeah, sir. Pratyush? हाँ. So you ask to your center incharge. कल्याण के होगे तो कल्याण का जो सेंटर इंचार्ज है वो दे देंगे आपको, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, हो जाएगा उधर. और कुछ? चलो ठीक है. So you take 10-minute break. After that, chemistry lecture. Bye, sir. Thank you, sir. Okay.